Hello everybody, let's start with JEE Advanced 2024 paper 1 question number 1. A dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as e की power alpha, epsilon naught की power beta, h की power gamma and c की power delta and n is a non-zero integer, then alpha comma beta comma gamma comma delta is given by. So in this question what we need to do is we need to assume a dimensionless quantity, that is k, which is equal to e की power alpha, epsilon naught की power beta, h की power gamma and c की power delta. For that what we need to do is we need to write down the dimensions of each and every quantity. For charge it is a t की power alpha, for epsilon naught it's m की power -1, l की power -3, t की power 4 and a की power 2 की power beta. For h, that is Planck's constant, is m, l की power 2, t की power -1 की power gamma, and for c, speed of light, l t -1 की power delta. Now on the left hand side we have a dimensionless quantity, so we can write down m की power 0, l की power 0, t की power 0 and a की power 0. Now what we need to do is we need to write down the equation by equating all the powers. For example, a की power is alpha and a की power is 2 beta. Here a की power is 0, so alpha plus 2 beta must be equal to 0. From here we can say alpha is equal to -2 beta. Now comes to mass, m की power -1 की power beta, so we can write down minus beta plus gamma, this is also equal to 0, so we can write down gamma is equal to beta. Now for the power of t we have alpha plus 4 beta minus gamma and minus delta, which is equal to also 0. In this situation we can write down all the values of alpha and gamma in this equation, and we have -2 beta plus 4 beta minus beta minus delta is equal to 0. From here we can say delta is also equal to beta. Now we have the relation between alpha, gamma, delta and beta. From here you can say the answer is A. So let's start with question number 2. An infinitely long wire located on z-axis carries a current I along the positive z direction and produces a magnetic field B. The magnitude of line integral B dot dl integral along a straight line from the point -√3a, a, 0 to a, 0 is given by. Alright, so what we need to do is first we need to draw a diagram. This is positive x-axis, this axis is y and outward axis is z-axis. So we have current over here, current wire over here. Now we have 2 points, one is a, 0 and another one is -√3a, a, 0. We need to find out integral B dot dl. Let's join this line from origin to this point, and this angle would be 45 degree, that is pi by 4. Let's say it's theta, and join this angle also. This angle is alpha, let's say it's alpha, and this is angle 60 degree. Now we need to take the element from here.
we are having an angle beta and taking an element of length dl. Now from this current carrying wire we have a magnetic field over here perpendicular to this line. If this angle is beta, we have this angle is beta as well, and the value of magnetic field due to a infinite line charge having this side A and this side R, this length must be R, then the magnetic field is mu naught I upon 2 pi R. For we need to find out B dot dl, then we have to take the element dl, and the angle between B magnetic field and dl is beta. So what we have to write down is integral mu naught I upon 2 pi R dl cos beta. We need to integrate it, but the problem is dl. So यहाँ पे अपन R सबसे पहले find out कर लेते हैं. From here we can say R cos beta is equal to A, also tan beta is equal to, this length is L and this is A, L upon A. From here A tan beta must be equal to L. Differentiating it, we have A sec square beta d beta is equal to dl. Putting all these equation in this, we have mu naught I upon 2 pi, value of R is A by cos beta. From here it's cos square beta, and from dl we have A sec square beta d beta. This gets cancelled, A is getting cancelled, all these quantities are constant. Now mu naught I divided by 2 pi, we have integral d beta. Now let's integrate. We'll integrate this from minus pi by 4 to pi by 3. We have mu naught I upon 2 pi. Integration of d beta is beta minus pi by 4 to pi by 3. From here we have 7 mu naught I upon pi gets cancelled, 24. So now we have option number A correct. हेलो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 2 बिट्स each with charge Q and mass M are on horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius R. One of the bit is glued, यानी एक बिट को चिपका के रख दिया गया है to the hoop at some point of time while the other one performs oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of small oscillation is given by. तो इसके अंदर अगर आप देखो तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये एक हुप है और यहां पर हम एक चार्ज रख दिए हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, ये वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, तो ये वाला बीड ग्लू कर दिया गया यानी चिपका दिया गया है और इस बीड को हम मूव कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस बीट को हम स्लाइटली मूव कर दें, तो लेट से हमने स्लाइटली मूव कर दिया, तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा. यानी अब अगर यहां पे देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, तो अगर आप सेंटर पे ये मिलाते हैं, ये आर है, लेट से ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा. तो यहां पे अगर आप देखो तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी इसका ये वाला जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ बिड अलोंग दिस हुप सरफेस. तो यहां पे अगर आप देखें तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, ये चूंकि आर है ये थीटा है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 2r cos थीटा. तो इस जगह पे आप क्या लिखोगे 2r cos थीटा का होल स्क्वायर. तो अब अगर यहां देखा जाए तो इसके अंदर पूछा गया वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, लेकिन इसमें हुप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, वो मास है या नहीं है या किस तरह का है. तो इसके अंदर हम एज्यूम कर लें कि ये जो हुप है ये फिक्स्ड है.
तो हुप फिक्स्ड हो गया। हुप फिक्स होने से अब क्या हो गया, अब जो भी ऑसिलेशन होगा ये सिर्फ इस चार्ज का ऑसिलेशन होगा। तो अब अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और लेट से ये जो डिस्प्लेसमेंट की है हम इस पॉइंट से वो एक्स की है। अब ध्यान रखिएगा हम जो ऑसिलेशन कर रहे हैं वेरी स्मॉल ऑसिलेशन कर रहे हैं, यानी थीटा विल बी वेरी स्मॉल। थीटा क्या रहेगा, तो बहुत छोटा रहेगा। अगर थीटा छोटा है तो एक्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये जो आर्क है ये बहुत छोटा होगा, तो उस केस में आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स वाई आप ये फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर रखें, चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2r cos थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा 1 हो चुका है तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। एंड यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाएगी, क्योंकि थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ma। अब अगर यहां पे ध्यान से देखें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं थीटा को x के टर्म में। यहां से यहां 2r है तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 2r। तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2r। अब अगर इसको और इलेबोरेट करके लिखोगे तो इट विल बिकम क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू आर क्यूब इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यहां से आप कह सकते हो दिस रिप्रेजेंट्स एसएचएम इक्वेशन। और अब जो एसएचएम इक्वेशन हो गया तो ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इजीली आपको दिख रहा है कि चॉइस भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो बहुत ही आसान है। अब ये डिपेंड करता है कि आईआईटी ने इसका आंसर की किस हिसाब से दिया है, क्योंकि हमारे हिसाब से आईआईटी यही आंसर की देना चाहिए, क्योंकि अगर हम हुप को फ्री छोड़ दें तो हुप फ्री छोड़ देंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसके अबाउट बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह ऑसिलेशन होना चाहिए, और उसकी कैलकुलेशन एनर्जी का इक्वेशन लिख के करोगे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एज पर मी कि ये क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया होगा वो हुप को फिक्स्ड रख के ही डिजाइन हुआ होगा, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा। तो आप इसी के हिसाब से आंसर भी आ रहा है तो ये करेक्ट आंसर है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगा था और क्वेश्चन नंबर 4 भी एसएचएम से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू फोर्स F। तो इसके ऊपर ये फोर्स F दे दिया गया विद द वैल्यू x इन मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट पोजीशन 1 मीटर। यानी t इक्वल टू 0 पे बोला गया है, पार्टिकल रेस्ट पे है और उसका पोजीशन 1 मीटर है। द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू π/4 सेकेंड। तो इसके अंदर इस इक्वेशन से ही क्लियर है कि फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है इसके। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि -20x प्लस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन बन जाएगा -4x प्लस 2। तो अगर तुम इसमें से 4 कॉमन ले लो तो इट विल बिकम -x प्लस हाफ, एंड माइनस को बाहर निकाल लें तो एक्सेलरेशन एसएचएम का इक्वेशन रिप्रेजेंट करने लगेगा x माइनस हाफ से। तो ये पूरा इक्वेशन जो एक्सेलरेशन का है इट इज रिप्रेजेंटिंग नाउ एसएचएम इक्वेशन। और इसके अंदर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन आए तो ये पूरे क्वांटिटी को अगर हम कैपिटल X मान लें तो इस तरह से मीन पोजीशन निकालना आसान होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। यानी नेट एक्सेलरेशन 0 होने के लिए X की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हाफ मीटर होनी चाहिए। यानी इस जगह पे एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी दिस विल बी द मीन पोजीशन। तो यहां से आपको ये पता चल गया मीन पोजीशन यहां है, और यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 पे रेस्ट पे है। यानी अगर ये एसएचएम का इक्वेशन है, जो कि डेफिनेटली ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसएचएम का इक्वेशन है। तो यहां से अगर आप देखो ध्यान से तो x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू हाफ पे मीन पोजीशन है, और वापस रेस्ट पे कब आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे। यानी अगर हम यहां से देखें तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हाफ मीटर हो गया।
और बच्चे यहाँ पर रेस्ट पे है तो ये v इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर दें। तो किसी भी SHM पे रेस्ट पे कब आता है पार्टिकल, तो किसी भी SHM में रेस्ट पे पार्टिकल आता है जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। और यहां पर देखिए t इक्वल टू 0 पे ये इस जगह पे है, तो t इक्वल टू 0 पे ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, यानी यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हमको पता चल गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 4 हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या हो गई, 2 हो गई। तो ओमेगा का वैल्यू 2 आ गया, तो हम टाइम पीरियड यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2, यानी t इक्वल टू क्या हो गया, पाई सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हम टाइम पीरियड निकल गया, यानी इस पूरे मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाई बाई 4 सेकेंड पे उसकी पोजीशन निकालें और मोमेंटम निकालें। तो यहां से अगर आप देखो पाई बाई 4 सेकेंड पे कहां पे होगा, तो अगर किसी भी टाइम पीरियड का, किसी भी SHM का टाइम पीरियड t है तो t बाई 4, यहां पे पाई है तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, t बाई 4, यानी t बाई 4 होगा तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे इस तरफ जा रहा होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव साइड से छोड़ा है और मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे इस तरफ होगा, यानी डायरेक्शन वाइज वेलोसिटी नेगेटिव होगा। इस तरह से आप आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, तो यहां से हाफ है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 आई हुई है, यानी यहां से v 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहां पे हमें क्या पूछा गया, हमें वेलोसिटी नहीं पूछा गया, हमें मोमेंटम पूछा गया है। ये मैग्नीट्यूड निकला, तो मोमेंटम अगर आप लिखते हो तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी डायरेक्शन के साथ, यानी हम क्या करेंगे 5 इंटू 1 लिखेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा -5 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी मोमेंटम निकल गया -5 kg मीटर पर सेकेंड। और इसके अंदर पूछा हुआ है कि द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो पोजीशन कहां पे आ गया, तो पोजीशन अगर देखें तो कोऑर्डिनेट वाइज ये कहां पे है, 0.5 मीटर पे है, तो कोऑर्डिनेट उसका क्या हो गया 0.5 मीटर, और मोमेंटम क्या हो गया -5 kg। तो इससे सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में बेस्ड था SHM के। अगर आप इस तरह से इक्वेशन लिख लेते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होता। स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही इजी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ बातें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इसी इंफॉर्मेशन को बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करके हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको पहले समझते हैं। तो यहाँ कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in circular orbit under the influence of centripetal force this। यहां पे माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि इनसाइड है और कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, यहां ध्यान रखिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसका टर्म भूल जाते हैं और रिप्रेजेंटेशन से हमें लगता है पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसको नहीं भूलिएगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। तो V जो है यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर K इज द पॉजिटिव फोर्स constant, r is the radial distance from the origin. According to Bohr quantization theorem, angular momentum of particle is given by L equal to NH upon 2 pi है। एक्चुअली यहाँ पे NH क्रॉस लिख दिया है और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर भी दिया है ताकि आप H और H क्रॉस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो बहुत ही क्लैरिटी से क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है। नाउ हियर इट इज सेइंग H is the Planck constant and N is a positive integer. If V and E are speed and total energy of particle respectively, then which of the following expression is R correct? तो इसके अंदर बच्चों कहीं ना कहीं अब आपको एक एक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसको हम एक एक करके यूज करें। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहले हम इन बातों को लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है VR से और इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ½ ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम फोर्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया हुआ है KR, और ये ही फोर्स क्या है, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी अगर V स्पीड से घूम रहा है किसी ऑर्बिट को तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या हो जाएगा,
एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। यहां से अगर हम कहें तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू के बाय एम हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपने स्पीड का निकाल लिया, यहां से आपने जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो वी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। किसके टर्म में रिप्रेजेंटेशन है? एच क्रॉस के टर्म में रिप्रेजेंटेशन है। यानी हमें इसको किस में ले जाना है? एच क्रॉस में लेके जाना है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि सर यहां पे क्वांटाइजेशन थियरी से बताया हुआ है कि L इक्वल टू एन एच क्रॉस होगा। तो आप ऑलरेडी जानते हो M इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है। लेकिन आंसर एन एच क्रॉस में है तो हम इसको भी एन एच क्रॉस करके लिखें। तो यहां पे एम वी आर इक्वल टू एन एच क्रॉस हो गया। अब अगर आप देखें यहां पे तो हम क्या चाह रहे हैं? हम या तो V या R हम रिप्लेस करें। यहां पे R का टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहां से R का टर्म रिप्लेस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसमें R का टर्म रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से R की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर हम R की वैल्यू रखें तो V इंटू रूट एम बाई के हो जाएगा। तो इस जगह पे अगर देखो M इंटू V इंटू R की वैल्यू हम V के टर्म में वहां से रखें तो क्या हो जाएगा? V इंटू रूट अंडर एम बाई के एंड दिस होल क्वांटिटी इज एन एच क्रॉस। अब अगर यहां पर आप ध्यान दो तो ये वी स्क्वायर हो गया, यहां से इस तरफ लोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू एन एच क्रॉस। और यहां देखो, यहां ध्यान देना, अब ये उस तरफ ले जा रहे हो तो रूट के बाय एम हो जाएगा और ये एम की पावर हाफ है, ये एम है तो एम की पावर 3/2 हो गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर के अपॉन एम क्यूब। तो आपको दिख रहा होगा कि अरे सर ये तो सीधा सीधा ये वाला चॉइस करेक्ट हो गया, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है तो इसमें वी स्क्वायर का आप क्वांटिटी मैच करा दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस पे आना है। तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? तो एम वी आर के बराबर होगा। लेकिन यहां पर एम वी आर में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है? एम और आर में रिप्रेजेंटेशन है। यानी यहां से हमें क्या हटाना है? यहां से हमें वी को हटा देना है। अगर वी हट जाएगा तो हमारा काम बन सकता है। तो देखते हैं वी हटा के क्या बनता है। तो ये तो एम आर यहां रहने दो और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इससे वी की वैल्यू हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू रूट अंडर के बाय एम। तो अगर आप यहां से देखें तो ये वाला m इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो यहां पर तो ये क्या हो गया? एम आर स्क्वायर इंटू रूट के बाय एम इंटू एल। अब अगर आप देखोगे तो L अपॉन एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? रूट के बाय एम। तो चलिए चॉइस में देखते हैं क्या इस टर्म में रिप्रेजेंटेशन किया है एल का। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर ये इसी टर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से आप आसानी से ये चॉइस टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये तो बहुत ही बेसिक और फॉर्मूला जो हमें आता है, एक फॉर्मूला एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, बस यही अप्लाई हो रहा है। तो चलिए अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। इसके अंदर एनर्जी का बात कर रहा है। तो एनर्जी की बात अगर हम करें तो यहां पे आप एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का तो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हाफ के आर स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब अगर आप देखें एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के आर स्क्वायर। यानी ये क्या बन जाएगा? के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के आर स्क्वायर बाई 2। यानी कहीं ना कहीं ये क्या बन गया? के आर स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी क्या आ गया? के आर स्क्वायर। लेकिन क्या चॉइस के आर स्क्वायर के टर्म में है? तो चॉइस के आर स्क्वायर के टर्म में नहीं है, एन एच क्रॉस के टर्म में है। तो हमको ये पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा एन एच क्रॉस के टर्म में। तो आप यहां से देखें तो V का टर्म आप निकाल चुके हो और आर स्क्वायर वी स्क्वायर के टर्म में है। तो हम इसको लेके चलें के इंटू एम वी स्क्वायर बाई के। करेक्ट। तो अगर आप देखें तो के आर स्क्वायर को के को तो यहीं रखा और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई के कर लिया। तो ये के और के कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू h क्रॉस के टर्म में यहां निकाले हुए हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? h क्रॉस के टर्म में एन एच क्रॉस
रूट अंडर के बाय एम क्यूब। तो अब अगर यहां से देखें और वहां पर मैच कराएं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, m इंटू रूट एम। तो ये वाला m कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बिकम NH क्रॉस रूट अंडर k बाय m। तो आपको दिख गया होगा कि अरे सर ये भी तो मैच कर रहा है यहां पे, तो ये भी मैच हो गया, यानी एंगुलर मोमेंटम वाला भी मैच हो गया, एनर्जी वाला भी मैच हो गया, वेलोसिटी वाला भी मैच हो गया। अब इसी तरह से अगर हम आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वापस इस इक्वेशन पे आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको गोला क्यों लगा के रखा, क्योंकि यही मेन इक्वेशन है जिससे आपको चीजें फेच करनी है। तो इस जगह पे आप देखें तो आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई के। वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करें इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, m बाई के, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे निकाले हुए हैं NH क्रॉस रूट के अपॉन m की पावर क्यूब। तो m का पावर क्यूब यानी m रूट m हुआ, तो यहां पे m और m कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं NH क्रॉस, और देखें यहां पर ये k है, ऊपर k है, तो ये रूट से कैंसिल होकर यहां रूट बचेगा, यानी रूट के अंदर 1 अपॉन के m हो जाएगा। तो इस जगह अगर आप देखें तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, NH क्रॉस 1 अपॉन के m। तो इस तरह से ये चॉइस भी करेक्ट है। तो इसके चारों चॉइस करेक्ट थे, लेकिन इसको सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना था कि कौन सा टर्म हम लिख लें जिससे सारे टर्म कोरिलेट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वी आर सब जगह इन्वॉल्व हो रहा है, तो वी और आर का हमें कोरिलेशन चाहिए था, और इस तरह से आप पूरे नंबर इसमें पा सके। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और सारे बच्चों ने सही भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें तो दो स्ट्रिंग दी हैं, दोनों के मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, और एक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू दी है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि इस कंपोजिट स्ट्रिंग के अंदर अगर मुझे स्ट्रैंडिंग वेव प्रोड्यूस करनी है कुछ ऐसे कि ऊपर नोड या फिर एंटी नोड बने, तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर आप ऑप्शन गौर से देखोगे तो कुछ ऐसा ही है, और ये भी पूछ रहा है उस केस में नंबर ऑफ नोड कितने बनने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पहले हैंडल करते हैं, फिर इसके ऑप्शंस पर आते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना। अब आप सोचो, अगर मैं इसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने वाला हूं तो किसी एक सोर्स के सपोर्ट से स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एक ही होगी। हाँ, दोनों के अंदर स्पीड अलग अलग होगी, दोनों के अंदर वेवलेंथ अलग अलग होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं हो सकती। और फ्रीक्वेंसी को सेम रखते वक्त अगर इसके अंदर मुझे इस पॉइंट पर नोड बनाना है, तो ऑब्वियसली पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर मुझे नंबर ऑफ लूप भी इंटीजर चाहिए, और दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर ऑफ लूप इंटीजर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहां नोड बनने वाला है, यहां नोड बनने वाला है, ऑब्वियसली यहां भी नोड बनने वाला है। तो मुझे नहीं पता कि मिनिमम कितने लूप मैं इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ रफली मान लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने मान लिया इसके अंदर, बनाया तो मैंने एक है, लेकिन मैंने यहां पर लिखा है ये m लूप है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ और लूप बना देता हूं, 1 2 3 और 4, मतलब काउंट 4 नहीं है, काउंट में इसमें n लिखूंगा, मुझे नहीं पता कि कितने लूप बनेंगे। तो मैं मान लेता हूं इसके अंदर मैंने n लूप बनाए। अब देखो, यहां पर जो वेवलेंथ है वो λ2 बोल देता हूं, यहां की वेवलेंथ में λ1 बोल देता हूं। तो आप ये बोल सकते हो λ1/2 इंटू m, ये वाली लेंथ होगी। तो मैं पहली वाली स्ट्रिंग की लेंथ में लिख सकता हूं नंबर ऑफ लूप इंटू एक लूप की लेंथ, और एक लूप की लेंथ कितनी है, λ1/2, और ये मुझे मालूम है दिस इज इक्वल टू l, जो इसमें दिया हुआ है। दूसरे में आते हैं, अगर मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ लिखूं तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ लूप इंटू λ2/2, दैट इज इक्वल टू इस स्ट्रिंग की लेंथ जो 2l दी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, और एक बात और, λ1 और λ2 का रेशियो मैं यही निकाल देता हूं, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जो λ1/λ2 है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अपन बोल सकते हैं ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा, यानी v1/v2। और ये सोचना आसान है कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी सेम है ना, सेम टेंशन रखा है, और स्पीड का फॉर्मूला √t/μ होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू √μ2/μ1,
और अगर मैं μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं 4 म्यू और म्यू, तो आप सोच सकते हो दिस इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब λ1 अपॉन λ2 दिस इज इक्वल्स टू 2। अब आप सोचो नंबर ऑफ लूप इंटीजर रखने हैं, λ1 और λ2 का रेशियो 2 के बराबर चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये निकालने की कोशिश करता हूं कि m और n की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं इसे यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, तो दिस इज m अपॉन n λ1 अपॉन λ2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2, और λ1 अपॉन λ2 की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो मैं लिख सकता हूं m अपॉन n दैट इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू अगर देखी जाए तो देखो m की पॉसिबल वैल्यू और n की पॉसिबल वैल्यू, ध्यान देना, m की पॉसिबल वैल्यू मेरी क्या क्या हो गए, 1 रख सकता हूं उस समय जब n को 4 रखूं, 2 और 8 रख सकता हूं, 3 और 12 रख सकता हूं, ऐसे बहुत सारी वैल्यू मैं ले सकता हूं। ठीक है, 2, 8 एंड सो ऑन, 3, 12। अब उसने कहा मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करो। अगर आप ऑप्शन ए पर आओ तो देखो ऑप्शन ए क्या कहता है कि नोड बनाना है ओ पर और मिनिमम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो तभी आएगी जब नंबर ऑफ लूप मिनिमम हो, और आपको मालूम है m की मिनिमम वैल्यू अपन 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर m की मिनिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं तो देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपन क्या ले सकते हैं, ध्यान देना, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमारी बनी वो बनी फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1/2l यानी नंबर ऑफ लूप अपॉन 2l √t/μ। मैंने m की वैल्यू 1 डाल दी। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है इस केस में। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि यार n की वैल्यू 4 ले लो, उस समय इसकी वैल्यू 2l ले लेना और म्यू की वैल्यू 4 म्यू ले लेना। ठीक है, दिस इज मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। और आप सोच सकते हो दिस इज न्यू नॉट, यानी ये उससे मैच कर रही है। इट मींस जो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन पर फोकस करना। ए ऑप्शन अगर अपन देखते हैं तो यही बोल रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर आएगी। इसका मतलब ए ऑप्शन क्लियर कट सही है। अब दूसरे में एंटी नोड पर फोकस किया है, इस पर अभी हम वापस लौटते हैं। अगले में लिखा कि कंपोजिट स्ट्रिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी के केस में जब नोड ओ पर हो तो इसके अंदर 6 नोड होंगे। तो अपन काउंट कर लेते हैं इस केस में। अगर आप गौर से देखो तो जो फिगर मैंने बनाया वो मिनिमम लेके ही बनाया, 1 और 4, मतलब इसमें 1 और उसमें 4 लूप बनाए। तो आप सोच सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नोड यहां पर मौजूद है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। और नो वाइब्रेशन प्रोड्यूस एंटी नोड पर, इसका मतलब बी और डी ऑप्शन को फिर से चेक करते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर मैं बी और डी ऑप्शन को चेक करना चाहता हूं, इस बार मुझे एंटी नोड चाहिए ओ पर। तो देखो ये हमारी स्ट्रिंग थी, ये दूसरी वाली स्ट्रिंग थी, लेंथ रफली मुझे याद है शायद ये 2l है और ये l है, म्यू और 4 म्यू, टेंशन सेम। और मुझे इस बार यहां पर एंटी नोड बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो लूप बने मैंने m प्लस हाफ लूप लिख दिया, मतलब m तो पूरे और एक आधा, क्योंकि मुझे यहां पर एंटी नोड चाहिए। दूसरे में अगर अपन बात करते हैं तो आप फिर से ये सोच सकते हो इसके अंदर भी अगर अपन देखें तो एक आधा लूप तो इसके अंदर भी आएगा, मतलब एक हाफ लूप है और बाकी पूरे लूप है। तो मैं इससे लिख देता हूं दिस इज n प्लस हाफ। λ1 और λ2 का रेशियो अभी भी वही होगा क्योंकि टेंशन और म्यू का रेशियो वही है। तो आप ये कह सकते हो कि m प्लस हाफ इंटू λ1/2, ये पहली वाली स्ट्रिंग की लेंथ है जो l है। दूसरे वाले की बात करें तो n प्लस हाफ इंटू λ2/2 दैट इज इक्वल्स टू 2l। मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया। आप ये कह सकते हो, यहां से अगर अपन देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो ये बनेगा 2 और 2 तो ये कैंसिल है, और इसे लिख देता हूं 2m प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, और λ1 अपॉन λ2 को 1/2 लिख दिया। λ1 अपॉन λ2 अपना कितना निकल के आया था, एक बार ऊपर देख लेते, 1/2 था या 2 था। λ1 अपॉन λ2 दैट इज 2, शायद ये देखो ये निकाला है हम लोगों ने, λ1 अपॉन λ2 वो 2 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू 2 के बराबर है तो इधर आके वो नीचे हो जाएगी, तो दिस इज 1/4।
तो अगर मैं इसे 1/4 करता हूं, अब ध्यान देना नीचे इवन है, ऊपर ऑड है, और यहां पर अगर इस नंबर को देखो तो दिस इज ऑड, दिस इज अगेन ऑड, तो ऑड अपॉन ऑड कभी भी ऑड अपॉन इवन नहीं आ सकता, तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं एंटी नोड ओ पर बनाना चाहूं तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम कुल मिला के आंसर पर आए तो हमने ए और सी तो पहले ही करेक्ट बोल दिए थे, और डी पर अगर अपन देखें तो देखो नो वाइब्रेशन मोड विद एंटी नोड ओ पर आए, तो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, और ये जो बी ऑप्शन है वो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा जो इस केस का आंसर हुआ दैट इज ए, सी एंड डी। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूं तो आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिखाई दे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक बीकर है जिसके बॉटम पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और कुछ हाइट तक लिक्विड इसमें फिल कर दिया है, और इसका जो बॉटम है दैट इज STU, इसको पॉलिश कर दिया है जिससे ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और आपसे ये जानना चाहता है कि इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ऑब्जेक्ट की जो ये हाइट है, इन दोनों को हम किस तरह से लिंक करें ताकि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्साइड कर जाए। तो आप ये सोच सकते हो कि यहां से जो रे गई, पहली बार इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये जो कर्व सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन होगा, और फिर वो मिरर के ऊपर फॉल करेगी। अगर मान लो मिरर के ऊपर रे नॉर्मली फॉल की, मतलब कुछ ऐसे जैसे ये रे गई, रिफ्रैक्शन के बाद यहां पहुंची और फिर मिरर पर फॉल की, और अगर ये रे नॉर्मली फॉल की तो आप बड़े आराम से ये सोच सकते हो कि मिरर इसे एग्जैक्टली वापस कर देगा, और एग्जैक्टली वापस किया तो रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, और रे ने अगर अपने पाथ को रिट्रेस किया तो आपकी जो इमेज है वो वहीं बन जाएगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो आप सोचो पहला रिफ्रैक्शन तो हमारा प्लेन सरफेस से हुआ, और प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो हमको मालूम है रे जो बेंड हुई, अगर मैं सोचूं, वैसे तो मैं चाहूं तो कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला भी लगा दूं, लेकिन ये नॉर्मली सबको याद ही होता है कि अगर ये h हाइट है और रे यहां पर रिफ्रैक्ट करके गई तो आपको यहां से आती लगेगी, और ये वाली हाइट ऑब्वियसली म्यू h के बराबर होगी, है ना। अब आप सोचो जो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी कर्व सरफेस पर ये रे फॉल की, उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली म्यू h, म्यू मतलब n से है मेरा, ठीक है, म्यू मतलब n से है, ध्यान देना ये जो मैंने म्यू लिख दिया वो बेसिकली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, दिस इज NH। अब कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है अगर मैं उसके फॉर्मूले की बात करूं तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r दैट इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन म्यू। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे को जाना है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.6 है। μ1 जहां से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो आप सोचो μ2 दिस इज 1.6 माइनस n डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली प्लस का 9 क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, μ2 दैट इज 1.6 v, इमेज जो बननी चाहिए वो इंफिनिटी पर बननी चाहिए ताकि रे मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करे, ताकि रे रिट्रेस कर ले अपने पाथ को, है ना, माइनस μ1 जो n है अपॉन u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कि nh के बराबर है, वो भी माइनस का nh, तो ये प्लस का nh हो गया। तो यहां से अगर मैं h निकालता हूं, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, h निकालूंगा तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस n। अब n की वैल्यू पुट करते जाते हैं और h की वैल्यू निकालते जाते हैं। जैसे मैंने n की वैल्यू अगर 1.42 लिखी तो ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1.42 यानी कि 0.18, और 0.18 अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आई थिंक ऊपर अपन 900 कर सकते हैं, नीचे 18, तो दिस इज 50। तो A इज द करेक्ट आंसर। वैसे आप चाहो तो सारे आंसर इसी तरीके से चेक कर सकते हो, इसका आंसर शायद एक और है, मैं उसे भी चेक कर देता हूं। अब अगर सेकंड ऑप्शन की बात करो, h की वैल्यू थी हमारी 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1.35 यानी कि 0.25। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो पॉइंट हटाऊं तो ये 900, इसका मतलब ये वाला जो टर्म बनेगा
ये हमारा 36 बनेगा। तो h की वैल्यू 36 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट सही सेकंड सही। इसी तरह से अपन थर्ड निकाल सकते हैं। थर्ड में अगर आप गौर से देखो तो 1.45 है, तो सॉरी 1.45, हाँ, तो यहां पर जो बनेगा वो 0.15 बनेगा। तो 1.15 अगर बना तो 9 डिवाइडेड बाई 0.15 आई थिंक 60 बनेगा। तो ऑब्वियसली ये 65 लिखा है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आप आखिरी वाला चेक कर सकते हो, अगर h की वैल्यू इस केस में बात की जाए तो ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 0.12, और 0.12 अगर मैंने किया तो ये वाला आई थिंक बनेगा 75, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ये दोनों इनकरेक्ट है और ए और बी करेक्ट है। तो फाइनल आंसर इज ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन दिया हुआ है टेम्परेचर के साथ, और पूछा है कि 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है, तो जो हमको हीट देनी पड़ेगी दैट इज Nk। तो N की वैल्यू बता दो। तो ध्यान देना, जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल होती है तो हम डेल्टा Q कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ms dt, और लिमिट लगा देते हैं जहां से जहां तक हमें टेम्परेचर पहुंचाना है। लेकिन यहां पर हम टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो केल्विन में लिखने वाले हैं। तो -73 का मतलब हुआ 200 केल्विन और 27 का मतलब हुआ 300 केल्विन। m की वैल्यू 1 दी हुई है, स्पेसिफिक हीट जो हमको दी हुई है दैट इज kT और dt। अगर मैंने इसे इंटीग्रेट किया 200 to 300 तो ये वाला जो टर्म निकल के आया हमारा दैट इज k t²/2, और अगर मैंने यहां पर लिमिट 200 to 300 पुट की तो दिस आंसर इज 25,000 into k। तो इसका मतलब जो हमारी n की वैल्यू निकल के आई दैट इज इक्वल्स टू 25,000। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक रोटेशन का अच्छा क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस ने पूछा। एक डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r है, जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, और एक मोटर के सपोर्ट से एक और डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r/2 है, जो कि इसके सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट पर अटैच है। अब इसने कहा कि अगर मोटर की हेल्प से मैं इस वाली डिस्क को रोटेट कराना स्टार्ट कर दूं, तो अगर कुल मिला के आप देखो तो जो मोटर और ये डिस्क इसी डिस्क से जुड़ी हुई है, तो अगर मैं इस पूरे को एज अ सिस्टम ट्रीट करूं तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इस बड़ी वाली डिस्क की है जिसके अबाउट ये फ्री टू रोटेट है। तो अगर इसके अबाउट टॉर्क नहीं आएगा तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो अगर मोटर ने इस वाली डिस्क को मान लो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराने की कोशिश की, तो ये वाली डिस्क मान लेते हैं किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से घूमी। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर ये बड़ी वाली डिस्क घूमेगी तो जो छोटी वाली डिस्क इसके साथ अटैच है उसका सेंटर भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो सेंटर है वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। हम चाहें तो इस v की वैल्यू बड़े आराम से बोल सकते हैं दिस इज कैपिटल R इंटू ω1। अब अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, वो भी इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको मालूम है स्टार्टिंग में जो एंगुलर मोमेंटम था पूरे सिस्टम का वो 0 था, तो इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा। तो बड़ी वाली डिस्क पर फोकस करना, बड़ी वाली डिस्क का जो ओमेगा है वो मैंने कुछ इस तरह से माना है ना। अगर मैं ऊपर साइड से देख रहा हूं तो मुझे ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है और छोटी वाली डिस्क का एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं बड़ी वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अगर नीचे की तरफ है तो छोटी वाली डिस्क का रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ है। लेकिन ट्रांसलेशन की वजह से अगर मैं छोटी वाली डिस्क का देखता तो वो भी क्लॉकवाइज ही आता, यानी नीचे की तरफ, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और स्टार्टिंग का 0 था तो फाइनल भी 0 ही होगा। तो मैं एक काम करता हूं, जो भी बड़ी वाली डिस्क का क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम आ रहा है और जो छोटी वाली डिस्क का एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज जो आ रहा है, मैं उनको बराबर कर देता हूं, मतलब सारे एंटी क्लॉक एक तरफ और सारे क्लॉकवाइज एक तरफ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज देखना कौन कौन से बने। एक तो बड़ी वाली डिस्क का I⍵1, यानी कि बड़ी वाली डिस्क का I1 ω1, और साथ में जो छोटी वाली डिस्क है उसके ट्रांसलेशन की वजह से, और वो बनेगा मास इनटू उसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है दैट इज R⍵1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज R। और ये एंगुलर मोमेंटम होगा जो छोटी वाली डिस्क के पास एंटी क्लॉकवाइज मौजूद है, जिसे मैं लिख देता हूं I2 इनटू ओमेगा। ठीक है, अब मैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर देता हूं।
तो बड़े ध्यान से देखना, मास और रेडियस वगैरह गिवन है, तो मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करता हूं तो देखो बड़ी वाली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज mr² इंटू ω1 प्लस ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज mr² इंटू ω1, और छोटी वाली डिस्क का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता तो वो बनता mr/2 का होल स्क्वायर। तो mr/2 का होल स्क्वायर मतलब r²/4 डिवाइडेड बाई 2 भी करना है तो ये बन जाएगा बाई 8 इंटू ओमेगा। अब अगर ध्यान दे तो mr² और mr² की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बनेगा अगर देखें तो 3/2 ω1 दैट इज इक्वल टू ω/8। तो यहां से अगर मैं ω1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ω1 की वैल्यू मेरी निकल के आती है दैट इज ω डिवाइडेड बाई 12। और इसने जो हमसे पूछा कि जो बड़ी वाली डिस्क की एंगुलर स्पीड है अगर वो ω/n आती है तो n बता दो, तो हमारा जो आंसर बना दैट इज इक्वल टू 12। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ पॉइंट सोर्स S emits unpolarized light uniformly in all directions at 2 points A and B। तो 2 पॉइंट्स हैं A and B जहाँ पे इंटेंसिटी का रेशियो अपने को दिया है R, ओके, और इंटेंसिटी का रेशियो कितना है R इज इक्वल टू 2। इफ अ सेट ऑफ 2 पोलरॉइड्स is having 45 degree angle between their pass axis is placed just before point B पॉइंट से पहले अगर हम ये रख देते हैं then the new value of R अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं ये हो गया अपना पॉइंट सोर्स S और यहाँ कोई पॉइंट A और यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया B। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक ये। देखिए A पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि रेशियो 2 दिया हुआ है, इट इज़ मोर देन 1, सो A पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि A पॉइंट पास में होगा और B पॉइंट दूर होगा थोड़ा, ठीक है। सो ये A पॉइंट, ये डिस्टेंस मान लेते हैं RA और ये डिस्टेंस मान लेते हैं RB। सो अपन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटेंसिटी का रेशियो R डेट इज IA/IB, ये अपने को कितना दिया हुआ है 2। इसके बाद फिर हमने क्या किया, 2 पोलरॉइड्स रख दिए जिनके बीच में एंगल है 45 डिग्री। कहाँ पे रखा है, B से ठीक पहले, B से ठीक पहले हमने यहाँ 2 पोलरॉइड्स रख दिए। तो एक पोलरॉइड ये रख दिया हमने और पोलरॉइड्स के एक्सिस के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो एक पोलरॉइड अगर ये है तो एक पोलरॉइड थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे है, ये इसके पास एक्सिस हो गई और ये इसके पास एक्सिस हो गई और इनके बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पर, A पॉइंट पे इंटेंसिटी तो अभी भी उतनी रहेगी, A पॉइंट पे इंटेंसिटी तो अभी भी उतनी रहेगी, तो ये तो IA हो गया। B पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है ना वो चेंज हो जाएगी बिकॉज अब जो इसके पास लाइट पहुँचेगी वो पोलराइज्ड हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट पहुँचेगी अब B के पास। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो देखिए जो पहला पोलराइजर है, पहला पोलराइजर जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इंटेंसिटी विल बिकम हाफ, इंटेंसिटी विल बिकम हाफ, पहले से इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। पहले कितनी थी इंटेंसिटी IB, तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी पहले पोलराइजर के बाद IB/2। फिर बारी आएगी दूसरे पोलराइजर की, दूसरे पोलराइजर के बाद कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी IB/2 cos स्क्वायर 45। मेलस लॉ लग गया यहाँ पर। तो ये है अब यहाँ पे इंटेंसिटी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा IB/2 cos स्क्वायर 45 और ये है अपनी R की नई वैल्यू, इसको बोल देते हैं R डैश। तो यही नई वैल्यू अपने को R की निकालनी है। सो R डैश विल बी IA/IB/2 cos स्क्वायर 45 1/2 होता है, सो ये हो जाएगा 4 IA/IB एंड IA/IB ओरिजिनली अपने को 2 दिया हुआ था, so it will be 4 into IA/IB is 2, so it will become 8। so जो नया रेशियो है वो 8 हो जाएगा, so करेक्ट आंसर विल बी 8। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। अ सोर्स ऑफ साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज
when the observer and the source move towards each other at a speed v with respect to the ground as shown in case 1। तो केस 1 में आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक तरफ आ रहे हैं v स्पीड से। द ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड टू बी 288 हर्ट्ज। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा 240, अभी यहाँ पे आ गई 288। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है, क्यों? डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है ऐसा। ठीक है, इतनी बात हो गई। सो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर हम डॉपलर की इक्वेशन यूज करें देन वी कैन राइट एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ एयर, ये मैं v0 मान लेता हूँ। और फिर आगे का जो साइन कन्वेंशन होगा वो कैसे, तो दोनों ही टुवर्ड्स आ रहे हैं। टुवर्ड्स आने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है एपरेंट वो ज़्यादा रखनी है अपने को, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डेट इज v अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर जो हमने v0 माना हुआ है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा सोर्स की वेलोसिटी डेट इज ऑल्सो v। सो यहाँ से दिस इज 288 इज इक्वल्स टू 240 v0 प्लस v अपॉन v0 माइनस v। तो यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा है बस, और इतने क्वेश्चन को पढ़ के हमने डॉपलर इफेक्ट लगा दिया है क्योंकि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई थी और ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। हाउएवर व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर एट द सेम स्पीड v। अब ये अवे जा रहे हैं, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। अब ये लोग सेम स्पीड v रखी है इन्होंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी। ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी मेजर करता है n, तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अपने को एक बार और डॉपलर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, एक बार और डॉपलर की इक्वेशन अपने को लिखनी है। तो देखते हैं बाद वाले केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कितनी थी 240, वेलोसिटी ऑफ एयर v0। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे आएगा, तो दोनों अवे जा रहे हैं यानी दोनों ही घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डेट इज v एंड फिर यहाँ v0 प्लस v। ठीक है, घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू आएगी। सो यही अपने को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 240 और ये v0 माइनस v और v0 प्लस v की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल रही है 240 अपॉन 288। ठीक है, जिसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे अब यहाँ से। ठीक है, 6 से जा रहा है ये, उसके बाद फिर 8 से, फिर ये 6 से जा रहा है। सो ये कितना आ गया 45 × 200, सो 200 हर्ट्ज़ इज राइट आंसर। सो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर वो हो जाएगी 200 हर्ट्ज़। सो अपने को क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी टू बी n हर्ट्ज़। सो अपने को n की वैल्यू निकालनी थी। सो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 200। ये अपना आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स रीड द क्वेश्चन। वी हैव 2 लार्ज identical water tanks 1 and 2 kept on the top of a building of height h and are filled with water up to a height h। तो बिल्डिंग की हाइट h है, बिल्डिंग के ऊपर 2 टैंक रखे हुए हैं और टैंक्स के अंदर पानी कहाँ तक भरा हुआ है, स्मॉल h हाइट तक। बोथ द टैंक कंटेन्स एन आइडेंटिकल होल ऑफ स्मॉल रेडियस ऑन देयर साइड्स क्लोज टू देयर बॉटम। ठीक है, एक साइड पे रखा हुआ है होल और बॉटम में है। आगे फिर अ पाइप ऑफ द सेम इंटरनल रेडियस एज डेट ऑफ द होल इज कनेक्टेड टू द टैंक 2। तो टैंक 2 से एक पाइप को जोड़ दिया हमने एंड द पाइप एंड्स एट द ग्राउंड लेवल। और पाइप कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ग्राउंड के लेवल पे। व्हेन द वाटर फ्लोज फ्रॉम द टैंक 1 and 2, तो अब दोनों से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। टैंक 1 में से वाटर फ्रीली निकलेगा होल के थ्रू, जबकि टैंक 2 में से वाटर निकलेगा थ्रू द पाइप। द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक्स आर T1 एंड T2, तो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टैंक 1 से T1 टाइम लग रहा है ख़त्म होने में और टैंक 2 से पानी को ख़त्म होने में लग रहा है T2 टाइम। ठीक है, ये दे दिया और ये अपने को एक डेटा गिवन है यहाँ पर, h की वैल्यू इतनी है। देन द रेशियो T1 अपॉन T2 कितना होगा।
चलिए ठीक है, सो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। देखिए ये हो गया अपना बिल्डिंग, ये ग्राउंड, और इसके ऊपर ये 2 टैंक्स हैं, ठीक है, दे आर 2 टैंक्स, दे आर 2 टैंक्स। ये टैंक 1, ये टैंक 2 मान लेते हैं इसको। टैंक 1 में बस यहाँ एक होल है, जबकि टैंक 2 में यहाँ एक होल है और साथ में एक पाइप कनेक्टेड है। सो ये एक पाइप यहाँ कनेक्टेड हो गया, ग्राउंड तक आ रही है पाइप, और इनमें वाटर फील्ड है अप टू हाइट h, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, कैपिटल H। दोनों में रिलेशन अपने को गिवन है यहाँ पर। ये कितना टाइम ले रहा है ख़त्म होने में, T1, और ये कितना टाइम ले रहा है ख़त्म होने में पानी को, T2। तो अपने को T1/T2 निकालना है। सो देखिए यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2GY। किसी समय पर मान लो लेवल कितना हो रखा है, y है ना, तो √2GY। और अगर हम ये एरिया मान लेते हैं A, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं कैपिटल A, देन T1 निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। सो A1 कितना है, A, V1 हो गया √2GY, A2 कितना है, A, और V2 मतलब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी। तो बेटा इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dH/dt, और ये नेगेटिव भी होगा क्योंकि हाइट कम हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इसको dH/dt की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, dH/dt की जगह dy/dt लिख सकते हैं, क्योंकि अब हाइट कितनी रह गई है, y, और ये नेगेटिव भी होगा। सो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दिया हम लोगों ने। वेरिएबल अगर सेपरेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, -a/a √2g इज इक्वल्स टू, और dt को भी इधर ले आते हैं, सो ये हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू dy/√y। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स। फ्रॉम द लिमिट, y की इनिशियल लिमिट थी h, फाइनल लिमिट है 0, और टाइम 0 से t1। तो ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, -a/a √2g टाइम t1 इज इक्वल्स टू √y का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√y, ठीक है, और लिमिट फिर h से 0। सो ये हो जाएगा -2√h। सो माइनस माइनस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा a/a √2g t1 इज इक्वल्स टू √h, ये 2√h। ये हमारी पहली इक्वेशन है, हमने t1 निकाल लिया है। सिमिलरली हम लोग अब t2 निकालने जा रहे हैं, है ना, इस वाले का टाइम निकालने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे जब ये वाटर निकलेगा ये यहाँ से बाहर, तो उसकी जो स्पीड होगी, वो अब हो जाएगी y, तो ये है, और प्लस h हाइट और नीचे गिर रहा है वो एक्स्ट्रा, तो अब उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी √2g h प्लस y, ये स्पीड होगी यहाँ पर। तो अगर हम लोग उसके लिए भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखेंगे, टैंक 2 के लिए अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास होगा -a, सिमिलरली इसी प्रकार हो जाएगा √2g, y की जगह हो जाएगा h प्लस y इज इक्वल्स टू a dy/dt, ये लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे भी अगर हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -a/a √2g बराबर dt, इसको dt को इधर ले आते हैं तो ये dt हो गया, इज इक्वल्स टू dy/√h प्लस y। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड्स, तो ये हो जाएगा 0 से t2, और ये हो जाएगा y की लिमिट 0 से h से 0, h से 0, ठीक। सो ये हो जाएगा फिर -a/a √2g, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t2 इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन 1/√h प्लस y है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √h प्लस y, और जब लिमिट्स रखेंगे तो h से 0। इसको सॉल्व करने पर अब क्या आ जाएगा,
माइनस ए अपॉन ए रूट 2g T2 इज इक्वल्स टू 2, और ये माइनस साइन भी आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन अभी रहने देते हैं, 2 लिख देते हैं इसको, और ये हो जाएगा रूट h माइनस रूट h प्लस स्मॉल h, ठीक है। सो ये टर्म यहाँ पे मैं माइनस साइन इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, सो वी गेट a अपॉन a रूट 2g T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट h प्लस h माइनस रूट h, ये आ जाएगा अपने पास। सो अब हमारे पास T1 भी है और T2 भी है। T1 ये रहा अपने पास, ये इक्वेशन थी T1 के लिए, और T2 के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, तो T1 बाई T2 आ जाएगा अल्टीमेटली, जो अपने को निकालना है। सो अगर डिवाइड करोगे तो देखो ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 2g a ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी गेट T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, सो इट विल बी रूट ओवर h अपॉन रूट ओवर h प्लस h माइनस रूट ओवर कैपिटल H, ओके, रूट ओवर कैपिटल H। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अपने को क्या स्टार्टिंग में दिया गया था वैल्यू, स्टार्टिंग में जो रिलेशन था हमारे पास वो अपने को क्या गिवन है, कैपिटल H इज इक्वल्स टू 16/9 स्मॉल h। सो ये रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल H इज इक्वल्स टू 16/9 स्मॉल h। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, T1 बाई T2 विल बी रूट h अपॉन रूट, ये कैपिटल H को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 16/9 तो ये हो जाएगा 25/9 स्मॉल h माइनस रूट 16/9 स्मॉल h। सो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा स्मॉल h तो, और ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 5/3 माइनस 4/3। सो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे ये 1/3 बचेगा और 3 ऊपर चला जाएगा फिर, तो ये 3 हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, T1 अपॉन T2 विल बी 3। तो ये अपना आंसर है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L दिया है और मास है कुछ सर्टेन मास दिया नहीं है अपने को। इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ मासलेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मासलेस है और स्ट्रिंग की लंबाई भी L है, और ये सब यहाँ पे फिक्स्ड एट वन एंड, टॉप भी अपने को दिया हुआ है। सो ये स्ट्रिंग है यहाँ पर और ये अपना रॉड है, ठीक है, और इस पॉइंट पर ये लोग यहाँ पर फिक्स हैं पॉइंट O पर। आगे बढ़ते हैं। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पिवोटेड एट पॉइंट O इफ अ हॉरिजॉन्टल इम्पल्स P इज इम्पार्टेड टू द रॉड एट अ डिस्टेंस x। सो ये x दूरी पर, कहाँ से ये डिस्टेंस x? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास से। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास से x दूरी पर हमने एक इम्पल्स दिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड द पॉइंट O। तो ये घूमने लग गए उसका अराउंड विद द रॉड रिमेनिंग अलाइंड विद द स्ट्रिंग। तो जो रॉड है वो अलाइंड है इसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। इसका क्या मतलब है कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, दोनों सेम एंगल से घूम रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ये होगी कि हो जाएगी कि ये रस्सी मान लो यहाँ पर है और रॉड यहाँ पे होगा ऐसे। तो ये साथ साथ घूम रहे हैं यहाँ पर, ऐसा है यहाँ पर। इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ n इज, तो अपने को n निकालना है। n क्या था यहाँ पर, ये यहाँ पे यूज हुआ था n। सो कुल मिला के अपने को x की वैल्यू निकालनी है कि x कितना है। तो देखिए अगर ये साथ साथ घूम रहे हैं, है ना, साथ साथ घूम रहे हैं, तो हम इस सिस्टम को, सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पर, सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पर, रॉड और स्ट्रिंग, रॉड एंड स्ट्रिंग, क्योंकि ये साथ साथ घूम रहे हैं, कोई ज़्यादा रिलेटिव चेंज हुआ नहीं है, तो इसको हम एक रिजिड सिस्टम मान सकते हैं। एक रिजिड सिस्टम माना जा सकता है। जैसे कि एक हम ऐसा मान सकते हैं कि दे आर लाइक टू रॉड्स। रस्सी को भी हम एक रॉड जैसा यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं।
मासलेस रॉड जैसा ट्रीट कर सकते हैं हम यहाँ पे रस्सी को, तो घूम रहे हैं यहाँ पर ये विद सर्टेन ओमेगा। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं ओमेगा की वैल्यू। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें सेंटर ऑफ मास की बात करें, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये हो जाएगी VCM। सो वी कैन राइट VCM इज इक्वल्स टू ओमेगा, प्योर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ना देयर इज रोटेशन। सो ना एक रिजिड सिस्टम है अपने पास, VCM इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये L है और ये L/2 है, तो ये 3L/2 हो गया। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। फिर अगर इसके बाद अगर हम लोग लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएं तो हमने कितना लीनियर इम्पल्स दिया बॉडी को, P, और ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम विल बी M, केवल रॉड का ही मास है, रॉड का मास मैंने यहाँ पर M माना है, सो M VCM, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। और अगर हम यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देते हैं, तो एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम किसके अबाउट लगा रहा हूँ मैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ठीक है, सो क्या लिखा जाएगा इसके अबाउट, एंगुलर इम्पल्स कितना आएगा, P इंटू एक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, और फाइनल हो जाएगा इसका I ओमेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है हमने, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका कितना हो जाएगा, I ओमेगा हो जाएगा। I कितना हो जाता है रॉड का, ml²/12, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो ml²/12 इंटू ओमेगा। सो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इनका यूज करके अपने को x निकालना है। तो इसी इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो एक काम करते हैं कि P को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, P को मैं लिख देता हूँ MVCM, और फिर x इज इक्वल्स टू ml²/12 इंटू ओमेगा। फिर VCM अपने पास क्या है, ओमेगा 3L/2, तो वो भी रख देते हैं, ओमेगा 3L/2, x इज इक्वल्स टू ml²/12 इंटू ओमेगा। तो देखिए यहाँ से ये मास कैंसिल आउट हो रहा है, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो ये हो जाएगा इधर 6। सो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, L/18, x की वैल्यू हो जाएगी L/18, और x किसके बराबर दिया गया था, L/n के बराबर, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 18। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, 18 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ठीक। ओके बच्चों, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14 फॉर पेपर 1। सो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमें थर्मोडायनेमिक साइकिल दिया हुआ है और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें मैच कराने हैं। सो अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे पहला पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो वर्क इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस JK। एंड थर्ड पार्ट कह रहा है R जो है इसका हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस KL। एंड S पार्ट जो है वो कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस MJ। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो MJ जो हमारा है बेटा, MJ किस टाइप का प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और गैस जो हमारी वो आइडियल गैस है। तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है आइडियल गैस का, वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो S का आंसर तो हमें सीधा सीधा यहीं से मिल जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस MJ इज 0। सो हमारा पहला पार्ट आ गया कि S वाले का हो जाएगा हमारा कितना, सेकंड नंबर। अब अगर हम लोग देखें R का हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस KL, तो KL कौन सा प्रोसेस है हमारा, KL जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वही हमारा हीट गिवन होता है। तो KL जो है हमारा बेसिकली KL जो प्रोसेस है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, NR, टेम्परेचर कितना यहाँ पे 3T0 ln P0/2P0। सो यहां से वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, माइनस NR 3T0 ln 2। ओके, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इज 1, सो वर्क डन विल बी -3RT0 ln 2। अब हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट गिवन होता है वही वर्क डन होता है, तो वर्क डन हमने निकाल लिया -3RT0 ln 2। सो यही हमारा हीट गिवन हो जाएगा। सो R के लिए हीट गिवन इन द टू द गैस इन द प्रोसेस KL हमारा कितना हो जाएगा, -3RT0 ln 2।
सो जो R है उसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5। तो यहां से हमने देख लिया कि R जो है उसका हो जाएगा 5। ओके, फिर हमारा Q ऑप्शन क्या कह रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस JK। JK प्रोसेस में हमें क्या निकालना है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो JK हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। JK हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है और आइसोबारिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U होता है दैट इज NCV डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इज 1 और मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस के लिए जो CV का वैल्यू होता है 3/2R होता है एंड डेल्टा T विल बी 2T0। ओके, सो दिस 2 and 2 will be get cancel out, so change in internal energy is 3R/T0। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे Q ऑप्शन का, तो Q ऑप्शन का हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड पार्ट। सो Q का जो मैच कर रहा है वो हमारा हो जाएगा थर्ड। अब हमें फर्स्ट वाले पार्ट का निकालना है, P का जो निकालना है क्या हमें, वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो एक एक प्रोसेस के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोसेस K to L के लिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है वर्क डन। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले J to K के लिए। तो J to K एक आइसोबारिक प्रोसेस है और हमें पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, NR डेल्टा T। सो नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है R एंड डेल्टा T हो जाएगा 2T0। सो J to K प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आ जाएगा वो 2R/T0 आ जाएगा। K to L प्रोसेस के लिए हमने पहले निकाल रखा वर्क डन। अब हम लोग निकाल लेते हैं L to M प्रोसेस के लिए वर्क डन। ये भी एक आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसके लिए वर्क डन सेम हो जाएगा NR डेल्टा T। सो नंबर ऑफ मोल 1 है, R इंटू डेल्टा T कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक जाने में तो T0 माइनस 3T0, तो बेसिकली माइनस 2T0 डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी। सो इस प्रोसेस में जो वर्क डन आ जाएगा माइनस 2R/T0। एक और बचा हुआ है M to J। तो M to J अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, NRT P इनिशियल बाई P फाइनल। तो नंबर ऑफ मोल 1 है, गैस कांस्टेंट R है, टेम्परेचर कितना बेटा T0 है, ln P इनिशियल बाई P फाइनल, तो 2P0 बाई P0। ओके, सो P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा RT0 ln 2। तो अब हमें अगर पूरे साइकिल का वर्क डन निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐड करें, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर दें टोटल वर्क डन निकालने के लिए, चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे J to K के लिए हमारा कितना था भाई, 2R/T0 था। K to L प्रोसेस के लिए हमारा कितना था, माइनस 3R/T0 ln 2 था। फिर हमारा L to M के लिए कितना था, माइनस 2R/T0 था। एंड M to J के लिए हमारा कितना था वर्क डन, R/T0 ln 2 था। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, देखिए ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 2R/T0 ln 2। तो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा कितना रहा, माइनस 2R/T0 ln 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वर्क डन द साइक्लिक प्रोसेस का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया P का आंसर आया हमारा, P का आंसर आया 4। ओके, तो अब अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो P का 4 आया, Q का कौन सा आया भाई, Q का आया 3 और R का हमने कितना निकाला, R का हमने निकाला 5 और S का निकाला है 2। सो ऑप्शन में हम लोग मैच कर सकते हैं। यहां से P का कितना है भाई, हमारा P का 4 है, Q का कितना है 3 है, R का 5 है और S का 2 है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट S1, S2, S3 एंड S4 आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। हर प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है और साइड लेंथ जो स्क्वायर का A है। और हमें ये बोला हुआ है कि इन्हीं दो प्लेट के बीच जो कैपेसिटेंस है प्लेट का वो हमें दे रखा है C0 और इसकी वैल्यू दे रखा है C0 इज इक्वल्स टू ε0 A²/D। तो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। मतलब कि अपने पास 4 प्लेटें हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 4 प्लेटें हैं, ये हो गई प्लेट S1, ये हो गई प्लेट S2, ये हो गया प्लेट S3 एंड ये हो गया प्लेट S4।
ठीक है, हमें S1 और S4 के बीच निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या करेगा, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 व्हेन S2 एंड S3 इज नॉट कनेक्टेड। सो हमें S1 एंड S4 के बीच निकालना है, यानी कि इस प्लेट के बीच और इस प्लेट के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है निकालना है। तो टोटल 4 प्लेटेड है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने बनेंगे n-1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने बनेंगे 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो एक कैपेसिटर ये हो जाएगा, एक कैपेसिटर ये हो जाएगा और एक कैपेसिटर ये हो जाएगा। अब ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है, क्योंकि सभी प्लेटों के बीच जो स्पेसिंग दे रखा है वो हमारा इक्वल दे रखा है, D दे रखा है। सभी प्लेट के बीच जो स्पेसिंग दे रखा है वो D दे रखा है। सो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C, इसका भी C हो जाएगा और इसका भी C हो जाएगा। जैसा कि ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/3, यानी कि अगर हम लोग इसको माने C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई D होगा, और ये C नॉट के बराबर दे रखा है, तो हमारा ये C जो निकाला हमने ये C नॉट है बेसिकली, तो C नॉट/3 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो आंसर आया हमारा C नॉट/3 आया। अब देखते हैं P पार्ट को मैच कराते हैं, तो P पार्ट किससे मैच कर रहा है, हमारा थर्ड नंबर से मैच कर रहा है। सो P का जो आंसर हो जाएगा वो आ गया हमारा थर्ड। अब देखते हैं Q नंबर क्या कह रहा है भाई, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 सॉर्टेड टू S3, यानी कि इस बार ये प्लेट S1, ये प्लेट S2, ये प्लेट S3 एंड ये प्लेट S4, हमें जो निकालना है कैपेसिटेंस वो किसके बीच निकालना है, S1 एंड S4, जब S2 और S3 हमारे सॉर्टेड है। यानी इस बार भी S1 S4 के बीच ही हमें निकालना है, बट है क्या कि ये दोनों प्लेटें जो हैं वे कनेक्टेड एक दूसरे से सॉर्ट कर दी गई हैं। ओके, तो चलिए S1 S4 के बीच निकालना है, कैपेसिटर ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये S1 हो गया मान लेते हैं और ये S4 हो गया। ओके, अब है क्या, S2 और S3 दोनों सॉर्टेड हैं, तो एक प्लेट की तरह वो बिहेव करेंगे। अब S1 S2 के बीच एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं, तो S1 पॉइंट और S2 के बीच एक कैपेसिटर हो गया। S2 और S3 के बीच जो कैपेसिटर जोड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किटेड होगा, कोई मतलब नहीं होगा इक्विवेलेंट निकालते टाइम उसका। फिर S3 और S4 के बीच एक कैपेसिटर, तो टोटल इसका तो अब ये कैपेसिटर का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। तो टोटल कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका, ये और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो बेसिकली C/2 आ जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं C नॉट/2। सो अब देखते हैं कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन Q है उसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो दूसरे के लिए जब S2 एंड S3 सॉर्टेड है तो आंसर आ रहा है C नॉट/2, यानी Q का जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारा सेकंड नंबर आ रहा है। ओके, अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विथ S2 सॉर्टेड टू S4, यानी इस बार S2 और S4 सॉर्टेड है, S1 और S3 के बीच हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये प्लेट हो गई हमारी S1, ये दूसरी प्लेट हो गई S2, ये तीसरी प्लेट हो गई S3 एंड ये चौथी प्लेट हो गई S4। इस बार कौन कौन से सॉर्टेड है भाई, इस बार जो है S1 S3 के बीच हमें निकालना है। तो S1 ये प्लेट हो गया और S3 हमारा ये प्लेट हो गया, इन दोनों के बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना है। और S2 एंड S4 जो है वो सॉर्टेड है, S2 और S4 जो है वो सॉर्ट किए गए हैं, यानी कि ये दोनों सॉर्ट किए गए हैं, तो ये दोनों एक प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। अब फिर से हमें S1 S3 के बीच निकालना है, तो कैपेसिटर जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा, मान लेते हैं S1, और निकालना किसके बीच है, S1 S3 के बीच। तो ये पॉइंट हो गया अपना S3, और S2 और S4 इस बार सॉर्टेड हैं, तो वो दोनों एक ही पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। सो दिस इज S2 एंड दिस इज S4। अब कैपेसिटेंस जोड़ना स्टार्ट करते हैं। S1 और S2 के बीच एक कैपेसिटर, सो दिस इज S1 एंड दिस इज S2, इसके बीच एक कैपेसिटर हमने लगा दिया। S2 और S3 के बीच एक कैपेसिटर, तो S2 यहाँ पे है, S3 यहाँ पे एक कैपेसिटर, ये हो गया। फिर S3 और S4 के बीच एक कैपेसिटर, तो ये एक कैपेसिटर लग जाएगा। अब फिर से देखें, ये C0 है, ये C0 है और ये C0, तो ये दोनों हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C0। अब फिर से ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, 2C0/3। अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पे
तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2c0/3, यानी कि जो हमारा आर ऑप्शन है उसका इक्विवेलेंट कितना है 2c0/3। सो आर का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, 4 नंबर। अब निकालते हैं क्या, लास्ट वाला पार्ट क्या कर रहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S3 टू सॉर्टेड टू S1 और S2 जो है उसको S4 से सॉर्ट किया गया, यानी कि S1 S2 के बीच हमें निकालना है। तो चलिए दोबारा आते हैं, कैपेसिटर प्लेट को बनाते हैं। तो ये हो गया हमारी प्लेट S1, ये S2, ये S3 और ये हो गया S4। इस बार क्या है, S1 S2 के बीच निकालना है। तो सबसे पहले S1 S2 को मार्क कर लेते हैं, इन दोनों के बीच हमें निकालना है। और कह क्या रहा है इसमें, S3 सॉर्टेड टू S1, तो S3 को S1 से सॉर्ट करते हैं। S3 इज सॉर्टेड टू S1, ये हो जाएगा, ये दोनों प्लेटें सॉर्टेड हैं। एंड S2 इज सॉर्टेड टू S4, ये दूसरी वाली जो प्लेट है ये बेसिकली हमारी सॉर्टेड है S4 से। ओके, और S1 S2 के बीच हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया हमारा पॉइंट S1 मान लेते हैं और ये हो गया पॉइंट S2, इन दोनों के बीच हमें इक्विवेलेंट निकालना है। अब जैसा कि देखें S1 और S3 सॉर्टेड है तो यही पॉइंट हमारा S3 भी हो जाएगा, और S2 S4 सॉर्टेड है तो यही पॉइंट हमारा S4 भी हो जाएगा। अब कैपेसिटर जोड़ना स्टार्ट करते हैं भाई। S1 और S2 के बीच एक कैपेसिटर, तो दिस इज पॉइंट S1, S2 इधर है तो ये कैपेसिटर हो जाएगा। S2 S3 के बीच एक कैपेसिटर, तो ये हमारा दूसरा कैपेसिटर हो जाएगा। और फिर S3 और S4 के बीच एक कैपेसिटर, तो ये अपना तीसरा कैपेसिटर हो जाएगा। सभी के कैपेसिटेंस जो है वो C0 है, तो फाइनली C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, सभी पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा 3C0। ओके, तो अब देखते हैं कि लास्ट वाले का S का ऑप्शन कौन सा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S3 सॉर्टेड टू S1 एंड S2 सॉर्टेड टू S4, हमने निकाला 3C0। सो यहाँ पे ये पहला वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि जो S है उसका हो जाएगा फर्स्ट। तो अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे तो P का 3 ऑप्शन, Q का सेकेंड ऑप्शन, R का 4 ऑप्शन एंड S का 1 ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ये वाला मैच कर रहा है। ओके ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइट रे है, स्फेयर पे इंसिडेंट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है θ0, और जो स्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है n, और लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है वहां पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन φ0 के साथ, एंड देन पार्टली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द बैक सरफेस। फिर क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे देन इमर्जेस आउट ऑफ द स्फेयर आफ्टर पार्शियल रिफ्लेक्शन। फिर क्या कह रहा है कि द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे इज अल्फा। फिर हमें क्या कह रहा है, मैच द क्वांटिटीज मेंशन्ड इन लिस्ट 1 विद देयर वैल्यूज इन लिस्ट 2। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्फेयर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्फेयर। ओके, यहां से मान लेते हैं कोई लाइट रे आके इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल हो गया, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस θ0 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दे रखा है φ0। फिर यहां से पार्टली रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एंगल अगेन φ0 हो जाएगा, सो ये एंगल भी φ0 हो जाएगा। फिर यहां से लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, मान लेते हैं ऐसे चली गई। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एंगल भी φ0 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा हमारा θ0। ओके, सो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल डेविएशन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल डेविएशन कैलकुलेट करें तो दिस विल बी Δ1, और इस Δ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, θ माइनस φ0। यहाँ पे अगर हम लोग डेविएशन Δ2 की बात करें तो दिस विल बी द डेविएशन Δ2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी π माइनस 2 φ0। ओके, फिर अगेन यहाँ पे अगर हम लोग डेविएशन Δ3 कैलकुलेट करें तो दिस डेविएशन Δ3 विल बी θ0 माइनस φ0। ओके, सारे डेविएशन Δ1, Δ2, Δ3 सभी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो टोटल डेविएशन अल्फा निकालते टाइम हम सभी को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा θ0 माइनस φ0 प्लस π माइनस 2 φ0 प्लस θ0 माइनस φ0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें आ जाएगी 2 θ0 माइनस 4
फाई नॉट प्लस पाई, ये रिलेशन मिल जाएगा। ओके, फर्दर अगर हम लोग इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू n इंटू साइन फाई नॉट, और n क्या है भाई हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर। ओके, अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग फर्दर क्वेश्चन पे मूव करें तो फर्स्ट थ्री पार्ट का डेविएशन देखें तो अल्फा 180 डिग्री लेना है, फिर हमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थीटा नॉट और फाई नॉट की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें फर्स्ट थ्री ऑप्शन पी क्यू आर के लिए, तो देखते हैं कि थीटा नॉट और फाई में रिलेशन क्या आता है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री ले लूं, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, सो दिस विल गेट कैंसल आउट। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 4 फाई नॉट, या सिंपल बात करें तो थीटा नॉट आ जाएगा हमारा 2 फाई नॉट। ओके, फर्दर इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा नॉट बाई 2 इंटू कॉस थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू n साइन, और फाई नॉट की जगह पे मैं रख देता हूँ थीटा नॉट बाई 2, तो ये साइन थीटा नॉट बाई 2 साइन थीटा नॉट बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू n। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। जब अल्फा हम 180 डिग्री ले रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट में रिलेशन आ गया। अब अगर हम लोग फर्दर क्वेश्चंस पे जाएं तो हमने दो रिलेशंस निकाले हैं। पहला रिलेशंस निकाला है थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 2 फाई नॉट एंड 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू n। ये दो क्वेश्चंस, दो इक्वेशन से हम पी क्यू आर की मैचिंग इजिली करा सकते हैं। सो अब देखें पी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ n इज इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस वाले कंडीशन को हम पहले यूज कर चुके हैं, देन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा नॉट। तो अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 रख लें, यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 रख लें तो ध्यान से देखें 2 n की वैल्यू 2 रखेंगे तो cos थीटा नॉट बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका सिंपल सा मतलब हुआ cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री, यानी कि P के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमारा 5 नंबर पार्ट, तो P का हो जाएगा 5 नंबर। ओके, अब Q क्या कह रहा है, इफ n इज इक्वल्स टू √3 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। खैर इस कंडीशन को तो हम पहले यूज कर चुके हैं। देन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा नॉट पूछ रहा है, तो n की वैल्यू इस बार √3 लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। तो n की वैल्यू जब मैं √3 ले रहा हूं, n की वैल्यू √3 ले रहा हूं, तो यहां से हमें मिलेगा क्या 2 इंटू कॉस थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू √3, यानी कि cos थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू √3 बाई 2। तो यहां से हमारा थीटा नॉट आ जाएगा कितना, थीटा नॉट बाई 2 आ जाएगा 30 डिग्री, देन थीटा नॉट इज 60 डिग्री। ओके, यानी कि इस कंडीशन के लिए अगर देखें n इज इक्वल टू √3 ले रहे हैं और अल्फा 180 डिग्री ले रहे हैं, तो थीटा नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आई, थीटा नॉट की वैल्यू जो आई हमारी, थीटा नॉट की जो वैल्यू आई है वो 60 डिग्री आई है। यानी कि अगर हम लोग Q की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो 0 डिग्री दिया हुआ है, इस 0 डिग्री के लिए जो इक्वेशन हमारा है ये उस हर वैल्यू 0 के लिए सेटिस्फाइड होगा। अब अगर हम लोग R की बात करें तो कह रहे हैं इफ n इज इक्वल टू √3 एंड अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री देन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाई नॉट। तो यहाँ पे ध्यान से थीटा नॉट और फाई नॉट पे हमने क्या निकाला है रिलेशन, थीटा नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, और 180 डिग्री डेविएशन और n इज इक्वल टू √3 के लिए थीटा नॉट की वैल्यू 60 डिग्री निकाली है, तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा नॉट बाई 2 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। r का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर लास्ट क्या कह रहा है, इफ n इज इक्वल टू √2 एंड थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री देन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा हमें निकालना है। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी लेनी है, n की वैल्यू हमें √2 लेनी है और थीटा नॉट की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ध्यान से देखें, स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया हुआ है। साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू क्या था हमारा n इंटू साइन फाई नॉट। सो थीटा नॉट की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है
एंड n की वैल्यू √2 लेनी है, उसके करस्पॉन्डिंग हम फाई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 1/2 इक्वल टू साइन फाई नॉट, या फिर फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा का रिलेशन क्या था हमारा 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, वैल्यू सारी रखेंगे तो थीटा नॉट 45 डिग्री है, माइनस 4 फाई नॉट की वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाल रखी है, तो 30 डिग्री प्लस पाई मीन्स 180 डिग्री। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द डेविएशन अल्फा 150 डिग्री। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान देखें तो इस ऑप्शन एस के लिए हमारा क्या आ जाएगा 150 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन 4 से, दैट मीन्स एस के लिए हमारा हो जाएगा 4। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन मैच कराएं तो पी का 5, क्यू का सेकेंड पार्ट एंड आर का फर्स्ट एंड एस का 4, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं पेपर 1 का। इसमें क्या दे रखा है हमको, एक सर्किट दे रखा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम फर्स्ट इस K1 को क्लोज करते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच K1 इस रजिस्टर में करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है I1, तो हमें ये वैल्यू I1 निकाल ली है। फिर कह रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना इसमें करंट जा रहा है I2, तो ये हमें वैल्यू I2 की निकालनी है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अब साइमल्टेनियसली इस K2 को क्लोज कर दिया गया और इस K1 को ओपन कर दिया गया, तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन किलो रेडियन पर सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ V नॉट इन वोल्ट। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जब हम इमीडिएटली K1 को क्लोज करेंगे, जब इमीडिएटली K1 को क्लोज करेंगे तो जो हमारा इंडक्टर है वो करंट को अलाउ नहीं करेगा इससे, तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस R0 है, इस रेजिस्टेंस R0 में करंट जो I1 जाएगा इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच K1 वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जब K1 को क्लोज कर दिया उसके काफी समय बाद स्टेडी स्टेट करंट इसमें कितना दौड़ रहा है I2, तो जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो ये जो इंडक्टर हमारा एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, सो इस रेजिस्टेंस R0 में जो करंट I2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। यानी कि I1 आया 0 और हमारा I2 आया 4 एम्पियर। सो P का जो वैल्यू आ रहा है I1 करंट वो 0 है, तो P का जो ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड Q द वैल्यू ऑफ I2 हमारा 4 आया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं थर्ड नंबर पार्ट, द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इन किलो रेडियन पर सेकेंड। तो अब किया क्या गया, इस K1 को ओपन किया कर दिया गया और इस K2 को साइमल्टेनियसली क्लोज कर दिया गया। ओके, इसको साइमल्टेनियसली ओपन किया गया K1 को और K2 को क्लोज कर दिया गया। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 1/√L इंटू सी। सो 1/√, इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी 25 मिली हेनरी, सो 25 इंटू 10⁻³ एंड कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड, सो 10 इंटू 10⁻⁶। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴, और ये हमारा कितना आ जाएगा 2000 रेडियन पर सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 2 किलो रेडियन पर सेकेंड। सो थर्ड वाला पार्ट जो है हमारा, इसका सिंपल सा आंसर कौन सा हो जाएगा, आर का 2 किलो रेडियन पर सेकेंड, यानी कि इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर। अब लास्ट कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ V नॉट इन वोल्ट। तो वैल्यू ऑफ V नॉट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो करंट, इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हुई है 12Li2², और इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगा 12CV0²। सो दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि ऑसिलेट करेंगे। सो 12CV0² इज इक्वल टू 12Li², और करंट स्टडी कौन सा था I2। सो ये हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैपेसिटेंस C का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 10 माइक्रोफैरेड, सो 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू V0² इज इक्वल्स टू L इज 25 मिली हेनरी, सो 25 इंटू 10⁻³ इंटू I2 हमने कैलकुलेट कर रखा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, V0 निकालते हैं। सो V0 यहाँ से आ जाएगा हमारा, V0 आ जाएगा 25 इंटू 16 दैट विल बी 400 इंटू 10⁻³ बाई 10 इंटू 10⁻⁶। तो ये आ जाएगा 40 इंटू 10⁻3, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁴।
सो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, आगे हमारा 4 × 10⁴, सो वी नॉट कितना आ जाएगा यहाँ से 200। ओके, सो लास्ट पार्ट का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एस पार्ट का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 200, सो दैट इज 5। तो ऑप्शन मैच करते हैं, P का 1, Q का 3rd नंबर, R का 2nd नंबर एंड S का 5 नंबर, सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।